Hello students, good morning. This is your English class and we're gonna study chapter number 7, adverbs today. Let's see what are adverbs. The words which qualify the verbs, adjectives and other adverbs are called adverbs. What have you understood? Adverb. Let's see the name first of all. Add plus verb, which means the words that attach additional detail to the verb are called adverbs. Okay, remember that every adverb used with a verb attach an additional detail to the verb. ऐसे वर्ड्स जो किसी भी वर्ब यानी कि एक्शन जो भी काम हुआ है वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ ये बताएं. वर्ब्स के अलावा एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करें, डिस्क्राइब करें, जैसे कि वो एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है या फिर उसकी डिग्री क्या है ये बताएं, या सेंटेंस में आए हुए दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करें. उन्हीं वर्ड्स को हम एडवर्ब्स बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स, नेहा इज एक्सट्रीमली अशेम्ड ऑफ हर मिसडीड. हर मिसडीड. ओके, here the word extremely is describing the adjective ashamed. Ashamed means embarrassment, means शर्मसार हो जाना. So the word extremely is telling the degree of ashamedness, being ashamed. Because extremely is describing the adjective ashamed, so the word extremely here would be an adverb. Okay, next up, we will go to Delhi tomorrow. We will go. What is verb here? Go. इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा वर्ड है? Go. सेंटेंस की मीनिंग क्या है? We will go to Delhi tomorrow. हम कल दिल्ली जाएंगे. तो एक्शन जो है वो कब होगा? कल. Tomorrow. Correct? Because this word tomorrow is describing, is qualifying the verb go. That's why the word tomorrow here would be an adverb. Okay, and it is an adverb of time. We will see and discuss all kinds of adverbs in detail today. So let's do it. Let's go further and read. Basically there are three kinds of adverbs. So in major categories, the adverbs have been divided into three categories, as like the first one is called simple adverbs. तो simple adverbs क्या होते हैं? The words that add something to the meaning of verb, adjective and other adverbs are called simple adverbs. Simple adverbs are classified into 7 parts. तो simple adverbs means किसी भी verb, adjective या adverb में कुछ meaning को add करते हैं उसको ही बोलते हैं simple adverbs, और ये इनको classified किया गया है 7 parts में. So let's see the first one. Adverbs of time. The first kind or part of simple category adverbs are called adverbs of time. What is the meaning of adverbs of time? The adverbs which indicate the time when the action takes place are called adverbs of time. तो simple है इसकी meaning. adverbs of time क्या होते हैं? वो वर्ड्स या वो एडवर्ब्स जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, समय के बारे में बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ ये बताएं, उन वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल्स. कम सून एज पॉसिबल एज यू कैन. सून, कम. कम क्या है? वर्ब विच इज एन एक्शन. जितनी जल्दी हो सके आना. तो इस तरह से आना क्या है? एक्शन क्या है? कम क्या है? वर्ब है. और इसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? सून. और वो ये बता रहा है कि कब, विच मीन्स when. when the time of the action takes place. soon मीन्स एक्शन होने का जो टाइम है वो क्या है? जल्द ही. तो इस तरह से सून क्या है? क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम इंडिकेट कर रहा है एक्शन के होने का. तो इसलिए सून वर्ड क्या है यहाँ पे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम. Okay, you have to manage that.
नेक्स्ट अप, दे वर नॉट प्रेजेंट देन, वो उस वक्त उपस्थित नहीं थे। देन यानी कि पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कि वक्त मीन्स समय के बारे में इंडिकेशन है यहाँ पे कि प्रेजेंट क्या है, वर्ब है, और वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे मीन्स उनका होना जो था वो उस वक्त नहीं था। तो यहाँ पे देन वर्ड्स क्या कर रहा है, प्रेजेंट एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ प्रेजेंट मीन्स वर्तमान नहीं है, यहाँ इसका मतलब है उपस्थित होना, ठीक है। सो इस तरह से देन वर्ड क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से करेंटली, करेंटली मीन्स एट द मोमेंट। करेंटली आई एम राइटिंग ए नॉवेल, राइटिंग ए नॉवेल, राइटिंग क्या है, वर्ब है, एक्शन है, तो इसका होने का जो टाइम है वो क्या है, करेंट है, मीन्स प्रेजेंट टाइम पे अभी वो चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन, इट इज ऑन गोइंग। तो इस तरह से करेंट वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब राइटिंग को। सो दैट्स व्हाई करेंटली विल बी कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। Adverb of place. Adverbs of place, the adverbs which indicate the place of an action are called adverbs of place. So जिस तरह से adverb of time time को indicate करता है कि action कब हुआ, इसी तरह से adverbs of place place को indicate करता है means action किस जगह पे हुआ। He is going downstairs, going क्या है, verb है, वो नीचे जा रहा है। डाउन स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से नीचे, तो डाउन फ्लोर के लिए डाउन स्टेयर्स का डाउन स्टेयर वर्ड यूज करते हैं। सो हेयर द वर्ड डाउन स्टेयर इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब गोइंग एंड इज टेलिंग द प्लेस ऑफ वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो डाउन स्टेयर बता रहा है, आंसर कर रहा है कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है। ही इज गोइंग डाउन स्टेयर्स, वो नीचे जा रहा है, सीढ़ियों के नीचे जा रहा है। सो द वर्ड डाउन स्टेयर्स विल बी एन एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट अप, वी फाइंड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स इन द डेयरी। तो हमें सारे मिल्क प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं, डेयरी में मिलते हैं। तो इस तरह से पहली बात तो मिलने का फाइंड, वी फाइंड, ये क्या है, वर्ब है, तो कहाँ पे एक्शन होगा मीन्स आपको कहाँ मिलते हैं, डेयरी में मिलते हैं। डेयरी इज ए प्लेस, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई द वर्ड इन द डेयरी इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड इज प्रेजेंट वर्ब है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, हर जगह है। तो एवरीवेयर क्या सजेस्ट कर रहा है, प्लेस को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और होना क्या है, एक्शन। तो इस तरह से एक्शन कहाँ हो रहा है, हर जगह, उनका होना, उनका उपस्थित होना, ईश्वर गॉड वो हर जगह है। तो इस तरह से हैव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। Let's see what are these. The adverbs which connect the logical conclusion with the arguments presented in the preceding sentences are called adverbs of reason. Which means किसी भी sentence में जो adverb यूज किया गया है जिससे ये पता चलता हो कि किसी भी एक्शन का रीजन क्या है, मीन्स कारण क्या है, वजह क्या है, उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन बोलते हैं। जैसे ये आंसर करता है क्यों, या फिर किस वजह से एक्शन हुआ, क्यों एक्शन हुआ, किस वजह से एक्शन हुआ। जो वर्ड्स इसका आंसर करते हैं, जो एडवर्ब्स इसका आंसर करते हैं, उन्हें ही एडवर्ब्स ऑफ रीजन बोलते हैं। जैसे यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क दैट्स व्हाई यू वर पनिश्ड, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया था इसलिए तुम्हें सजा मिली। इसलिए दैट्स व्हाई हेयर शोज द रीजन। Okay, it describing the reason that you did not complete your work. That's why you were punished. So the word here, that's why, suggests because of. So it is called adverbs of reason. Mona worked hard, so she got the highest grade. मोना ने कड़ी मेहनत की तो उसके ग्रेड सबसे
अच्छे आए, सबसे अच्छे मिले उसको। तो इस तरह से सो या इसलिए, तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये वर्ड क्योंकि रीजन को शो कर रहे हैं, इस वजह से ये एक्शन हुआ। मीन्स उसको जो हाईएस्ट ग्रेड्स मिले वो किस वजह से मिले? वर्किंग हार्ड, बिकॉज शी वर्कड हार्ड। सो हेयर द वर्ड सो हियर इज an adverb of reason. Okay, an adverb of reason because it is suggesting that due to what reason the action is done. Let's go further. Adverbs of manner, it's very easy to understand because you have been studying about this since you are in lower classes. जब आप previous classes में भी इसके बारे में पढ़ चुकी हो। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर मीन्स तरीका, किसी भी काम करने के तरीकों को क्या मीन्स कोई भी काम किस तरह से हुआ, यही बताता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, द एडवर्ब्स विच इंडिकेट द मैनर ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो कोई भी काम कैसे हुआ, जो एडवर्ब्स ये बताते हैं उन्हें ही एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। इट इज रेनिंग हेविली, रेनिंग क्या है? वर्ब है। तो किस तरह से बारिश हो रही है? बहुत तेज, बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है। हेवी, भारी वर्षा हो रही है। करेक्ट। सो हेयर हेवीली वर्ड इज सजेस्टिंग द मैनर ऑफ द रेन, सो दैट इज व्हाई हेवीली इज हेयर एन एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, शी कैन मैनेज हर होम एंड ऑफिस नाइसली। शी कैन मैनेज, वो अपना घर और ऑफिस दोनों मैनेज कर सकती है अच्छे तरीके से। किस तरीके से? अच्छे तरीके से, नाइसली। So here the word nicely is describing the verb manage. Okay, so nicely here would be called an adverb of manner. Okay, now adverb of manner को पहचानना बहुत ही easy है। मोस्टली क्या होते हैं, ये एंड में यूज के होते हैं और साथ ही साथ इसमें ly सफिक्स भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से भी आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ एडवर्ब्स ऑफ मैनर किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कोई भी काम किस तरह से हुआ। ओके, हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन इज डन। नाउ लेट्स गो फर्दर। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, द एडवर्ब्स विच इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो वो एडवर्ब्स जो वर्ब या एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में बताते हैं कि किस हद तक, एक्सटेंट मीन्स लिमिट क्या है उसकी, मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत कम, थोड़ा, ज़्यादा, पूरे तरीके से जो एडवर्ब्स ये बताते हैं उन्हें ही एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बोलते हैं। जैसे आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई टास्क। ओके, कंप्लीटेड हेयर इज वर्ब, ऑलमोस्ट मीन्स अधिकांश वर्क मैंने अपना कर लिया है, अधिकांश काम मैंने अपना कर लिया है। तो ज़्यादातर से ये क्या बता रहा है? ऑलमोस्ट वर्ड डिग्री बता रहा है, लिमिट बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है कि काम कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, मीन्स कंप्लीट होने के वर्ज पे। ठीक है, द लाइन इज टू फैट टू रन फास्ट। टू मीन्स बहुत ही ज़्यादा, लाइन बहुत ही ज़्यादा मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता, तेज दौड़ नहीं सकता। तो इस तरह से टू वर्ड क्या है? एक्सटेंड बता रहा है, क्योंकि वर्ब और एडजेक्टिव की। द लाइन इज टू फैट, फैट क्या है? एडजेक्टिव है। यह लाइन की क्वालिटी बता रहा है कि वो किस तरह का है, वो मोटा है। लेकिन टू क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि वो एडजेक्टिव की डिग्री को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, टू फैट बहुत ही ज़्यादा मोटा है, इस वजह से वो तेज दौड़ नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से टू क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ओके, नेक्स्ट, एज लाइक शी इज क्वाइट वेल नाउ। अब वो थोड़ी सी अच्छी है। क्वाइट टेल द एक्सटेंट ऑफ वेलनेस। ओके, सो दैट्स व्हाई क्वाइट इज हियर एडवर्ब ऑफ डिग्री। द क्लोथ्स आर कंप्लीटली ड्राई, पूरे तरीके से, कपड़े पूरे तरीके से सूख चुके हैं। तो कंप्लीटली क्या बता रहा है? एक्सटेंट बता रहा है, डिग्री बता रहा है कि सीमा तक सूख चुके हैं, पूरे तरीके से सूख चुके हैं। तो इस तरह से कंप्लीटली वर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओके, सो ऑल दी हाईलाइटेड वर्ड्स एज लाइक ऑलमोस्ट, टू, क्वाइट, कंप्लीटली, ये सारे क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, क्योंकि ये किसका आंसर करते हैं कि
किस हद तक और टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन और द एडजेक्टिव्स are given in the sentences. Okay, adverbs of frequency. The adverbs which indicate how often an action takes place are called adverbs of frequency. Frequency means repetition, means किसी भी काम का या एक्शन का होना, तो कितना वो होता है, मीन्स कितने टाइम पे होता है, उसके होने का ऑफन अक्सर वो कब कब होता है, जो वर्ड्स या एडवर्ब ये इंडिकेट करे जिसके बारे में बताएं, उन्हीं एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओके, जैसे कि आई नेवर गो लेट फॉर माई कराटे क्लासेस. मैं अपनी कराटे क्लासेस के लिए कभी देर से नहीं जाती. तो कभी नहीं, नेवर, ये क्या बता रहा है कि आपका जो जाने वाला मीन्स जाना क्या है, एक्शन है. तो आपका जो एक्शन है वो प्राय क्या होता है, मीन्स लेट ना जाना आप कभी नहीं करते हो. करेक्ट. तो आपकी जो रिपीटेशन ऑफ गोइंग टू कराटे क्लासेस है वो क्या है, नेवर. यू आर नेवर बीइंग लेट फॉर कराटे क्लासेस. ओके, सो देर से आप का कराटे क्लासेस में जाना नहीं होता है. तो यहाँ पे एक्शन क्या है, देर से जाना, कभी नहीं, नेवर. सो द वर्ड हेयर वुड बी कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेयर. ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. Camels are rarely found in this area. In this area, rarely means बहुत ही कम, या आपको कुछ ही नज़र आएंगे कैमल्स इस एरिया में, या बहुत ही कम दिखाई देंगे, या आपको बहुत ही कम मिलेंगे. तो मिलना क्या है, पाना क्या है, वो वर्ब है. करेक्ट. तो इस तरह से कैमल्स का यहाँ होना या मिलना वो बहुत ही कम होता है. तो रेयरली यहाँ पे यही बात शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रेयरली कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. He sometimes used to drink milk in the evening. Sometimes, कभी कभी वो मिल्क लेना, शाम में मिल्क लेता है. तो इस तरह से मिल्क लेना क्या है, ड्रिंक मिल्क क्या है, एक्शन है. तो उसका जो रेपिटेशन है ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क वो कब कब होता है, समटाइम्स होता है, कभी कभी होता है, वो कभी कभी दूध पीता है शाम में. ठीक है. तो इस तरह से समटाइम्स क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. यूजुअली शी गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक. यूजुअली मीन्स जनरली, वो जनरली मीन्स ये उसके लिए ये हर रोज़ की बात है कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाती है. तो इस तरह से यूजुअली वर्ड भी क्या शो कर रहा है, रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन is being done here generally, every day, usually. Okay, so it is an adverb of frequency here. So all the highlighted words as like never, rarely, sometimes, usually are called adverbs of frequency because they answer the question how frequently or how often the action is done. Okay, now seventh type of simple adverbs are called adverbs of assertion. What are these? The adverbs which assert in the affirmative or negative sentence are called adverbs of assertion. Assertion means क्या होता है, to state something, किसी चीज़ को कहना या कथन करना, उसी को हम assertion बोलते हैं. तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस को आंसर करते हो, किसी भी क्वेश्चन को जब आंसर करते हो, तो या तो वो आप पॉजिटिव में करते हो या फिर आप नेगेटिव में करते हो. मीन्स कि हाँ मैंने काम किया है, या फिर बोलते हो कि नहीं मैंने नहीं किया है. तो ऐसे एडवर्ब्स जो कि ये शो करें कि आपने जो आंसर किया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उन्हीं को एडवर्ब्स ऑफ असर्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, लेट्स सी, यस दे आर माई रिलेटिव. सपोज इफ समवन आस्क यू दैट आर दे योर रिलेटिव्स, क्या ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तो आप आंसर करोगे यस दे आर माई रिलेटिव्स. तो यहाँ पे यस जो आपने बोला है ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ असर्शन है. मीन्स ये पॉजिटिव वे में, असर्टिव वे में आप इसको बोल रहे हो, अफर्मेटिव वे में बोल रहे हो. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ असर्शन. ओके, यस यू कैन डू दिस प्रॉपरली. अगेन यस हेयर इज एडवर्ब्स ऑफ असर्शन. नो ही इज नॉट माई फ्रेंड.
यू कैन रिप्लाई इन नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव सेंस में भी आपका आंसर हो सकता है। तो नो भी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ असर्शन है। ओके, तो किसी भी एडवर्ब्स को जब असर्शन में यूज किया जाता है, विच मीन्स या तो पॉजिटिव अफर्मेटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में, तो उसे ही एडवर्ब्स ऑफ असर्शन बोलते हैं। ओके, all the above highlighted words are adverbs of assertion as they answer the question that it start with auxiliaries। तो auxiliaries आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, WH, फैमिली वर्ड्स, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, इन सब से क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये जो आंसर करते हैं एडवर्ब्स ऑफ असर्शन, उन्हीं ऑक्सिलरीज का आंसर करते हैं। ओके, नाउ let's see the second type of adverb which is called interrogative adverbs। सिंपल एडवर्ब्स में आपने पढ़ लिया एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ असर्शन। नाउ इट इज टाइप बी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंट्रोगेटिव वर्ड से ही आपको इसको समझ जाना चाहिए कि ये क्या होते हैं। एडवर्ब्स विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो वो एडवर्ब्स जो क्वेश्चंस आस्क करते हैं उन्हें ही इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। जैसे वेयर वुड यू लाइक टू गो टुडे, हाउ विल यू पे माई ड्यू, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डिड ही केम हेयर। So all the above highlighted words are interrogative adverbs as they are used to ask questions। ठीक है, तो ये सारे words जो questions पूछते हैं और जब इनका यूज एज एन एडवर्ब होता है तो उन्हें ही interrogative adverbs कहते हैं। ठीक है, लास्ट सी, थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज कॉल्ड relative adverbs। relative, the adverbs which combine two sentences or clauses are called relative adverbs। तो जो दो clauses को जोड़ने का काम करते हैं या दो sentences को जोड़ने का काम करते हैं adverbs, उन्हीं adverbs को relative adverbs बोलते हैं। This is the reason why I came out from the room। इस वजह से यही कारण है क्योंकि मैं कमरे से बाहर आई। So यहाँ पे why is not used as interrogative word। यहाँ पे why interrogative word नहीं है, ask questions नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये combine कर रहा है दो sentences को। First sentence, this is the reason, second sentence, I came out from the room। ओके, सो क्योंकि ये relate कर रहा है दोनों sentence को, इस तरह से इसका kind क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, relative adverbs। ओके, relative adverbs। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये वही जगह है जहाँ पे मैं बॉर्न हुई। तो इस तरह से वेयर भी क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब्स। दैट वॉज द बॉय हु वॉज ब्लाइंड, वही लड़का था जो अंधा था। तो यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है बल्कि रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि वो दो सेंटेंस है, दैट वॉज द बॉय, वॉज ब्लाइंड क्लॉज, इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। ओके, सो ऑल द अबव हाईलाइटेड वर्ड्स आर रिलेटिव एडवर्ब्स एज दे आर यूज्ड टू join sentences or clauses। Okay, so I hope you have understood all the kinds of adverbs। You should repeat all the kinds of adverbs and I'll see you in next class। Okay।